تنخواہ داروں کو جس حد تک ممکن تھا ریلیف کیا، پینشن اور تنخواہوں کو مہنگائی کی شرح سے منسلک کرنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس، کہا وفاقی حکومت جو سہولت بھی دے رہی ہے قرض لے کر دے رہی ہے۔ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 2016 کے بعد اضافہ کیا گیا۔ بتدریج اضافہ ہوتا رہتا تو اچانک بڑا اضافہ محسوس نہ ہوتا۔ 30 سال میں پہلی بار 4000 ٹیرف لائنز میں کسٹمز ڈیوٹی ختم کی گئی۔ ٹیرف اصلاحات سے برآمدات بڑھیں گی۔ فرٹیلائزر اور زرعی ادویات پر ٹیکس لگانا تھا جو نہیں لگایا۔ چھوٹے کسانوں کو آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں گے۔ پوسٹ بجٹ کانفرنس سے قبل صحافیوں کا واک آؤٹ۔ گزشتہ روز ایف بی آئی کی جانب سے فائنانس بل پر بریفنگ نہ دینے پر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ نئے بجٹ کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی بلندی۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,24,000 کی سطح عبور کی۔ کاروبار 1,24,352 پوائنٹس پر بند۔ مئی کے ترسیلات زر میں گزشتہ مئی کے مقابلے 13.7% اضافہ۔ اس سال مئی میں 3.7 ارب ڈالر موصول ہوئے۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں 34.9 ارب ڈالر ترسیلات زر موصول ہو چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکس میں کمی سے ملازمت پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ سب نے مل کر عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ معاشی سطح پر مثالی ٹرن اوور تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ حکومتی اتحادیوں کے بجٹ پر تحفظات۔ پیپلز پارٹی نے سولر پینل پر 18% ٹیکس مسترد کر دیا۔ مرکزی ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا مہنگی بجلی سے نجات کا واحد حل سولر پینل تھا جس کو عوام سے دور کر دیا گیا۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی موجودہ مہنگائی میں ناکافی ہے۔ حیدرآباد کراچی موٹر وے 400 ارب کے منصوبے کے لیے صرف 15 ارب رکھ کر مذاق کیا گیا۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافی ٹیکس سے بھی مہنگائی بڑھے گی۔ پیپلز پارٹی کے موقف کو مناسب نہیں سمجھتا یا پھر پیپلز پارٹی کو سٹینڈ لینا ہوگا۔ محمد زبیر کی ARY نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں گفتگو، کہا پیپلز پارٹی کے 4 منصوبے کے لیے بجٹ نہ رکھوا سکی تو کیا فائدہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی دونوں طرف کھیلے۔ وزراء کی تنخواہیں بڑھا کر حکومت کیا میسج دینا چاہتی ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے غریب مزید پس رہا ہے۔ مزمل اسلم نے کہا روزگار کی عدم فراہمی، اوور ٹیکسیشن کے باعث لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اچھے ٹیلنٹ کو دنیا کے کئی ملکوں میں بلایا جاتا ہے۔ وفاقی بجٹ پر پی ٹی آئی کی شدید تنقید۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا تاریخ میں ایسا بھونڈا بجٹ پیش نہیں ہوا، حکومت نے بیڑا غرق کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں 500 اسکیمیں لے کر آ رہے ہیں۔ KB بجٹ کا حجم 2000 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا بجٹ میں کسانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ پی ٹی آئی کسانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ گندم میں 13، کپاس کی پیداوار میں 31% کمی ہوئی۔ آم کی فصل میں 75% کمی ہوئی۔ زراعت کے ہر شعبے کو ایک ایک کر کے تباہ کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ ضرور یہ کوشش کریں گے پاک بھارت مذاکرات میں۔ بھارت ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا پانی روکنا اعلان جنگ ہے۔ بھارت قانونی طور پر سنتاز معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو کی لندن میں پارلیمانی وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا پاکستان کا وفد امن کا پیغام لے کر دنیا میں نکلا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ہم برسلز بھی جائیں گے، یورپی یونین کو امن کا پیغام پہنچائیں گے۔ بھارت کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ بھارت نے دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرائی۔ بلاول بھٹو کی برطانیہ میں کشمیری رہنماؤں سے اہم ملاقات، کہا کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے کا نامکمل باب ہے۔ کشمیری عوام کا حق خود ارادیت سلب نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اہم شراکت دار ہے۔
भारत के साथ ताल्लुक है तो पाकिस्तान से भी रखना होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कॉरेला की अमरीकी सेंट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्द हलाक गिरफ्तार हुए, 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग से अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। गिरफ्तारी के फौरन बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ज़ाती तौर पर राब्ता करके इत्तला दी। इसमें ईबे गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और उसकी हवालगी शामिल है। उस वक्त ये दहशतगर्द गिरोह पाक अफगान सरहदी पट्टी में सरगर्म है। पाकिस्तान फाल इंसदादे दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। दाइश खुरासान कमजोर हो चुकी, उसकी सरगर्मियों में कमी आई है। पाकिस्तान की शराकतदारी इंसदादे दहशतगर्दी के आलमी तनाजुर में मुअस्सर साबित हो रही है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर सालिसी की कोशिश करते हैं तो ताज्जुब की बात नहीं होगी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान कहते हैं कभी उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान गरीना मसला भी हल कर लेंगे। वो नस्ल दर नस्ल जारी जंग को खत्म कराना चाहते हैं। वो वाहिद शख्स हैं जो लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। अमरीका और चीन के दरमियान डील हो गई। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। अमरीकी सदर ने लिखा, अमरीका चीन से नायाब धातें मादनियात दरामद करेगा। चीनी सदर और मेरी हतमी मंजूरी के बाद मुआहिदा नाफिज होगा। अमरीकी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चीनी तलबा को तालीम देंगे। चीन को 10% और अमरीका को 55% टैरिफ मिलेगा। चीन ने नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियां हटाने पर आमादगी जाहिर की है। चीन से ताल्लुकात और राब्ते बेहतरीन हैं। सदर ट्रंप का कहना है ईरान से जौहरी मुआहिदा मुमकिन नजर नहीं आता। मुआहिदे के बजाय जंग का खतरा बढ़ा है। मुआहिदा हो जाए तो बेहतर है, वरना ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीका से तिजारती टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का वफ्द रवा हफ्ते अमरीका जाएगा। वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल करेंगे। वफ्द IT, तवानाई और दीगर उमूर पर मुज़ाकरात करेगा। वफ्द में FBR, वजारत तवानाई, IT और मुताल्लिका शोबों के हुक्काम शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल मुत्तहिदा अरब इमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ आला सतह वफ्द भी होगा। वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीरा शामिल। दौरा दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म की UAE सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान समेत दीगर इमाराती हुकाम से मुलाकातें होंगी। पंजाब हुकूमत का सफाई में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को चैलेंज। वजीर बल्दियात ने कहा, कराची और पेशावर का हमारी किसी तहसील से मुकाबला करें। आपसे काम नहीं होता तो हमें बुला लें। सिंध वाले तो वैसे भी मरियम नवाज को अपना वजीर आला बनाना चाहते हैं। सफाई का जैसा काम पंजाब में हुआ, मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने रद्द अमल दिया। पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना है। पंजाब हुकूमत का नफरत और तकसीम की सियासत को हवा देना अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा। बड़ा सूबा बल्दियाती इदारों के बजाय कमिश्नरी निजाम से मामलात चलाए तो जमहूरियत के मुनाफी है। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ के लिए फूलों का तोहफा। बिलावल भुट्टो ने बरतानिया से यूरोप रवानगी से कबल नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ फूल भेजे। फूल पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले ने एवन फील्ड हाउस पहुंचाए। बिजली सरचार्ज में तब्दीली से कीमतों पर फर्क नहीं पड़ेगा। सरचार्ज को लिमिट में एडजस्ट किया है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है पावर डिवीजन पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात करना चाहता है। IMF प्रोग्राम के बाद हम किसी को छूट नहीं दे सकते हैं। YouTube और सोशल मीडिया की कमाई पर टैक्स लग गया। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस से कमाई टैक्स नेट में शामिल। टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग पर भी टैक्स, ई कॉमर्स, ई स्टोर और ऑनलाइन मार्केट पर भी टैक्स देना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं बहुत हो गया, सियासी इख्तलाफात को नफरतों और दुश्मनी में ना बदलें। खुदा के लिए जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दें। बड़े लोगों को कहता हूं दिल बड़ा करें और आगे बढ़ें।
बानी के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा, मुलजिम के 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका देना महज वक्त का ज़िया होगा। ये अपनी नौयत का पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और अहलिया की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ की रुखसत के बायस डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। अलीमा खानम कहती हैं, 2 साल से ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। अब केस की समाअत 26 जून को होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वजारत दाखिला के ज़ेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम ज़ेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। आवाम की आसानी के लिए इदारे एक दूसरे की इस्तेदाद कार से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इंफॉर्मेशन और डाटा का बर वक्त तबादला इंतहाई अहम है। सफारत खानों में तैनात अफसरान वजारत के दीगर इदारों की भी मुआवनत कर सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का इजलास। मजीद बसों की खरीदारी, ईवी टैक्सी और स्कूटर्स के लिए बजट मख्तस करने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं, कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुंचने की उम्मीद है। शहरियों के लिए डबल डेकर बसें भी ला रहे हैं। रेड लाइन मंसूबे में तेजी लाने की हिदायत। कराची के कई इलाके पानी से महरूम। सख्त गर्मी में पानी की अदम फराहमी से शहरी परेशान। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में पानी की किल्लत। इलाका मकीनों का एहतजाज। बताया, पिछले 4 महीने से पानी बंद है। हमें टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। ARY न्यूज की खबर पर एक्शन। कौमी शाहराह पर जमा पानी निकालने का काम जारी। मेयर कराची की हिदायत पर मशीनरी शाहराह से पानी निकालने में मसरूफ। कराची में सेफ सिटी कैमरों से कार्रवाइयों का आगाज। आराम बाग के करीब जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी पकड़ ली गई। ड्राइवर गिरफ्तार। आराम बाग थाने में मुकदमा दर्ज। DG सेफ सिटी का कहना है, कराची में सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये पहली कार्रवाई है। वजीर आला मुराद अली शाह और वजीर दाखिला सिंध ने एक्शन के अहकाम दिए। पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी को मिलकर काम करेगी। कैमरों से मुजरिमाना सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। औरंगी टाउन कराची में पुलिस एहलकार की गुंडागर्दी। दिन दहाड़े नौजवान को मार डाला। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। शरीफाबाद थाने का एहलकार इश्तियाक अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर तौहीद कॉलोनी आया। फहीम नामी नौजवान पर तशद्दुद किया, फिर गोली मार दी। फहीम अस्पताल पहुंचने से पहले चल बसा। उसका दोस्त अनस जख्मी हुआ। वाकई का मुकदमा दर्ज, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। 53 करोड़ फ्रॉड का केस। कराची की अदालत ने अदाकारा नादिया हुसैन की अबूरी जमानत की तौसीह कर दी। मुलजमान इम्तियाज और फैसल की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। फैसला सुनते ही दोनों मुलजमान अदालत से फरार हो गए। इम्तियाज और फैसल पर इल्जाम है कि उन्होंने अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के साथ मिलकर फ्रॉड किया। पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी। पहली हज परवाज रात गए 307 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हुज्जाज किराम का इस्तकबाल किया। कराची में निजी एयरलाइन से 148 हुज्जाज किराम वापस आ गए। हुज्जाज का इस्तकबाल सूबाई वजीर औकाफ समेत डायरेक्टर हज और दीगर हुकाम ने किया। हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक मुकम्मल होगा। दहशतगर्द इस्राएली फोर्सेज ने गजा में इमदादी मराकज को निशाने पर रख लिया। इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर फायरिंग। 36 अफराद शहीद हो गए, 200 से ज्यादा जख्मी। रफा में फिर इमदादी मरकज पर इस्राएली फोर्सेज की फायरिंग से 9 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 10 फलस्तीनी जान से गए। अमेरिका ने फलस्तीनियों को इमदाद देने वाली 6 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदी लगा दी। तंजीमों पर हमास की माली मुआवनत का इल्जाम आयद किया गया। लॉस
اینجلس میں غیر قانونی تارکین وطن کے پرتشدد مظاہرے، رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ، درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے لاس اینجلس پر بیرونی دشمن حملہ آور ہے، کیلیفورنیا میں جو ہو رہا ہے وہ قومی خود مختاری پر حملہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتی ہیں امریکہ کو جرائم پیشہ افراد اور غیر قانونی تارکین وطن سے پاک کرنا ہے۔ جنوبی افریقہ میں شدید برف باری، صحراؤں اور پہاڑی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ مختلف حادثات میں 12 افراد جان سے گئے، گاڑیاں برف میں پھنس گئی۔ شدید موسمی حالات کی وجہ سے سڑکیں بند کر دی گئیں۔ برف باری کے بعد شدید بارشوں سے سیلاب آ گیا، 49 افراد ہلاک۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا مد مقابل، جنوبی افریقہ کی ٹاس جیت کر فیلڈنگ، لنچ سے پہلے ہی آسٹریلیا کا ٹاپ آرڈر اڑا کر رکھ دیا، دفاعی چیمپئن مشکلات کا شکار۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل پہلی بار لارڈز میں کھیلا جا رہا ہے۔ سلیکشن کمیٹی برقرار رہے گی، پاکستان کرکٹ بورڈ کی کمیٹی تبدیل کرنے کی خبروں کی تردید۔ ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے صرف ڈیٹا انالسٹ حسن چیمہ کی جگہ عثمان ہاشمی فرائض انجام دیں گے۔ کمیٹی عاقب جاوید، اظہر علی، اسد شفیق اور علیم ڈار پر مشتمل رہے گی۔ اور 5 بار کی چیمپئن برازیل نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ساؤ پاولو میں میزبان ٹیم نے پیراگوئے کو 1-0 سے شکست دی۔ میچ کا واحد گول ونی جونیئر نے اسکور کیا۔ عالمی کپ کی تاریخ میں برازیل کبھی بھی کوالیفائی کرنے میں ناکام نہیں ہوا۔